Okay, good morning, students. In my earlier videos, I had talked about the chapter chemical kinetics. We had started with the chapter chemical kinetics. We had learned about molecularity, order of a reaction. What do we mean by the word order of the reaction? What is rate? How is rate determined? And then I had given you some numericals also, which I hope every one of you must have solved. Now let's come to the next topic. The next most important topic is how do we find out the order of a reaction. There are different methods to find out the order of the reaction. The first most important method is the graphical method. In this graphical method, what we do is we plot a graph between rate, if you can see very clearly, we plot a graph between rate and concentration. If the plot between rate and concentration comes out to be a parallel line to this axis, which means it is a zero order reaction, which means because as you are increasing the concentration of the reactants, there is no effect on the rate. Any such reactions which is independent of initial concentration of the reactants is said to be a zero order reaction. हम जितना भी concentration बढ़ा रहे हैं, आप देखो इधर देखिए, हम जितना भी concentration बढ़ा रहे हैं, rate की value constant रह रही है, तो this is a zero order reaction. In the reaction mixture, we calculate the rate. First of all we calculate the concentrations in different intervals of time. Then we plot a graph between concentration and time. After getting a graph between concentration and time, we plot a tangent to the curve at different times and we calculate the rate. After calculating the rate, क्या करते हैं हम? We plot a graph between rate and concentration of A, and if it becomes rate, since you know that rate of a reaction is independent of concentration for a zero order reaction. Whether you increase or decrease the concentration, the rate does not vary. Similarly, if you plot a graph, you carry on the reaction, you get the values of rate and concentration, and if you plot a graph between rate and concentration of A to the power 1, and if it comes out to be a straight line, that means the order of the reaction is 1. Similarly, if I plot a graph, this is again a hit and a trial method. Once we get the rate, once we get the time, once we get the rate and once we get the time, we will put these values in different, we got the concentrations for zero order, for first order, for second order. Suppose if we have plot a graph between rate and A to the power 2, that means order of the reaction is 2, and I get a straight line, then that means order of the reaction is 2. So in the graphical method, in the next, if you see, I have given a simple example of N2O5 decomposition. What we do is, first of all, we take N2O5, 2 moles of N2O5 are producing 4 moles of nitrogen dioxide and 1 mole of oxygen. सबसे पहला स्टेप क्या है, हम क्या करते हैं? इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द concentration with time. If you remember, I had told you how do we find out rate. Now in order to find out rate, what do? We select time intervals, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, and then we remove the concentration of the reactants. Here we are talking about concentration of reactants, that is N2O5. We remove the concentration of the reactant and measure the concentration of the reactant. So we have two parameters now. We have time and we have concentration. In this case, in this particular case, nitrogen dioxide as well as N2O5 is a gaseous substance. So what do? Is we measure the increase in the partial pressures. Then we convert these partial pressures into concentration. Now we have two important parameters. We have time and we have concentration. We plot a graph between time and concentration. क्योंकि ये एक रिएक्टेंट का कर्व है तो आपको मालूम है ये कर्व ऐसे आएगा, इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं. अगर यही प्रोडक्ट का कर्व होता तो ये कर्व आपका डिफरेंट आता, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो कर्व आपका ऐसे आएगा. अब सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? सबसे पहले हम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं रेगुलर इंटरवल के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो हमारे ऊपर है हम कैसा टाइम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं. एंड देन वी remove the concentration. Here
what we are doing is we are measuring the pressure and then we are converting that pressure into concentration and then we plot a graph between concentration and time. क्योंकि ये reactant है तो आपको मालूम है ये कर्व ऐसे आएगा. अब इतना करने के बाद ये तो रेट ये हमने क्या निकाल लिया, हमने सिंपली कर्व प्लॉट कर लिया, रेट निकाल लिया. वंस वी हाउ डू वी कैलकुलेट रेट. इफ़ यू रिमेंबर, रेट के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे. वन वॉज फॉर एवरेज रेट एंड अदर वॉज फॉर इंस्टेंटेनियस रेट. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स वी ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली बताया था. वी ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व एट डिफरेंट पॉइंट्स. वंस वी एंड देन द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट गिव्स यू द रेट. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, हमारे पास टाइम है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है उस पर्टिकुलर टाइम पे, और साथ में हमारे पास रेट भी है. तीनों चीज़ें हैं. तो सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टडी करेंगे. डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद उस रिएक्टेंट मिक्सचर को निकालेंगे. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम उसके मिक्सचर को फ्रीज कर लेते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर लेते हैं. यहाँ पर क्योंकि N2O5 का एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया और वो गैसियस स्टेट में है, तो हम उसका पार्शियल प्रेशर मेजर करेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कॉन्सेंट्रेशन में. वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम. यू नो, सिंस इट इज़ N2O5 इज अ रिएक्टेंट, उसका कर्व आपका ऐसे आएगा. अब रेट कैसे निकालेंगे, हम इस टेंजेंट पे, इस कर्व पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेंजेंट्स बनाएंगे और टेंजेंट्स का जो स्लोप होगा वो आपको मालूम है, दैट विल गिव यू द रेट. नाउ वी हैव 3 important पैरामीटर्स. वी हैव टाइम, वी हैव कॉन्सेंट्रेशन एंड वी ऑल्सो हैव रेट. These are, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया. हमारे पास इसी रिएक्शन के लिए टाइम भी है, कॉन्सेंट्रेशन भी है, रेट भी है. ये भी थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड है. अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक तरफ रेट ले लेंगे और N2O5 टू द पावर 1, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑर्डर 1 लेके हम रिएक्शन देख रहे हैं. अगर वो स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, जब हम N2O5 टू द पावर 1 ले रहे हैं और स्ट्रेट लाइन आ रही है बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर हमने रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया टू द पावर 2, ये मान के चलें कि ऑर्डर 2 है, तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, क्योंकि सेकंड वाले कर्व में, इस वाले कर्व में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है. इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O5 इज not 2 but it is 1. I am simply repeating again. The first method is graphical method. In the graphical method, we plot a graph between concentration and rate. If the graph between concentration and rate is a parallel line, parallel to the x-axis, it is a zero order reaction. If the graph between rate and concentration, that is a to the power 1, comes out to be a straight line, the order is 1. If you plot a graph between rate and concentration of the reactant raised to the power 2 and we get a straight line, the order is 2. अब इस सब को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टडी करना है. उस रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, N2O5 का डिकम्पोजिशन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. क्योंकि ये सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हैं, तो हम उसके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर. अब हमारे पास टाइम इंटरवल्स हैं और हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है. जैसे हमने रेट निकाला था, हम उसी तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन. और क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो इसका कर्व ऐसे आएगा. अगर ये प्रोडक्ट होता तो आपको मालूम है ये कर्व इस तरीके से आता. तो रिएक्टेंट है तो कर्व आने के बाद हम क्या करेंगे, हम रेट फाइंड आउट करेंगे. रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस कर्व पे अलग अलग टाइम पे टेंजेंट्स बनाएंगे. टेंजेंट्स बनाने के बाद जो स्लोप होगा टेंजेंट का, वो आपको देगा रेट. उसके बाद अब आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं. आपके पास टाइम है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और आपके पास रेट भी है. तीनों चीज़ें हैं. ये करने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 2. जिस भी कर्व में, जिस भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वो उस ऑर्डर का उसका ऑर्डर होगा. जैसे इस केस में N2O5 के केस में आप देख रहे हैं, जब हमने N2O5 टू द पावर 2 लिया है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है. इसका मतलब ऑर्डर इज
1, क्योंकि 1 वाले में N2O5 टू द पावर 1 में स्ट्रेट लाइन आ रही है. दिस इज ग्राफिकल मेथड. एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, इससे पहले हमने मॉलिकुलरिटी पढ़ी थी. आप जो इक्वेशन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ N2O5. तो इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी तो 2 है, पर ऑर्डर 2 नहीं है. ऑर्डर जो है, जो रेट है, वो सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा. दिस वॉज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है विच इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेथड, या इनिशियल रेट मेथड भी इसको कहते हैं. क्या करते हैं, सपोज एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर, जो हमारा पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, वो केवल उन रिएक्शन